Good morning to all of you children. Before starting Salu Marada Thimaka lesson, I am going to show you a picture of Salu Marada. See, here is a picture of Salu Marada, how she is standing. First of all, I would like to ask question to all of you. Do you know who is this lady? Yes, she is Salu Marada Thimaka. How do you know? Have you ever seen her in anywhere? No, I don't think you have seen anywhere. Yes. Now I am going to tell about her. She is Salu Marada Thimaka. She is nearly 105 years old. She lives in Karnataka. She never went to school nor studies a single class. She married to a cattle herder. She belongs to a poor family. She and her husband both worked as a laborer in a quarry. Now, but why we are going to read about her? What she did in her life? Why Salu Marada Thimaka is included in this textbook? Actually, what she has done for society? What contribution is there of hers? So see, just why Indian government as well as international level has awarded to her? What is her contribution in the society? So she has done a lot of things. She has contributed to the society a lot. See, though she was a poor, but she has a lot of creative ideas in her mind. And see, she had no son and daughter. Both her husband and Salu Marada lived together. So she got all of a sudden an idea in her mind. They thought that why should we not plant banyan trees on either side of the road to get the shelter for the pedestrian. Okay? So she has done a lot of things. She planted so many trees on either side of the road, and for this she has been recognized in the society, and so the government has awarded to her. And do you know, her husband also left her in the middle of her life. Even that, she was not discouraged, and she was doing her work continuously, and it was her mission. She took this mission and completed. And not only she planted the banyan trees, she did other works for the society. Okay? And so the American government has also honored her for this work. So now I am going to tell about little bit more history. She was born in Hulikal village, which comes under Magadi Taluk of Bangalore rural district. Actually, it is a rural district. Magadi Taluk means district. Okay, so she was known as Thimaka then. So in this way,
I have told about her little bit, and we can know a lot more about when we will read this lesson. Okay, so now I am going to read the lesson, and you have to listen it carefully, that how I am going to pronounce the words, difficult words. Okay, and I will tell you the meanings of all those words also which you don't know. So let's start reading now. Salu Marada Thimakka, an environmentalist. See the spelling of environmentalist here. How it is pronounced? Environmentalist. Environmentalist means पर्यावरणविद, जिसको पर्यावरण के बारे में बहुत ज्ञान रहता है. तो Salu Marada Thimakka, an environmentalist, is one of the well-known personalities of Karnataka. देखो, ये वन ऑफ द वेल नोन पर्सनालिटी, मतलब ये बहुत सारी जो पर्सनालिटी हैं जो वेल नोन है, मतलब फेमस है. वेल नोन मीन्स फेमस, प्रसिद्ध. तो जो बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं कर्नाटका के, उनमें से एक पर्सनालिटीज़ ये भी है. कौन है? सालू मरादा थिमक्का. शी हैज़ अर्न्ड रिकॉग्निशन ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स इन प्लांटिंग एंड टेंडिंग टू 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 kilometers. तो सी हैज़ अर्न मतलब कमाना है ना, तो उसको पहचान मिल चुकी है. रिकॉग्निशन मतलब पहचान. ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स. अनटायरिंग मतलब बिना थके हुए. देखो, टायरिंग में अगर अपन प्रीफिक्स लगाते हैं अन, तो अनटायरिंग हो जाता है वो, ठीक है. और एफर्ट्स मतलब प्रयास. तो उसने बिना थके हुए अपनी पहचान बना ली है. देखो, इन किस लिए पहचान बनाई है? इन प्लांटिंग एंड टेंडिंग. प्लांटिंग मतलब पेड़ लगाने में, एंड टेंडिंग मतलब केयरिंग, देखभाल करने में. 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 kilometer. 284 बरगद के पेड़ उसने कितने किलोमीटर में लगाए हैं? 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में, दूरी में उसने लगाए. हाईवे है ये सड़क, उसमें इन्होंने लगाया है. हर परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यू, है ना. आप लोग परसिस्टेंट वर्ड्स को सुने होंगे, क्रिकेट खेलते हैं उस समय भी. परसिस्टेंट परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, इंडिया की परसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में नहीं दिख रहा है इंडियन टीम की, तो वहाँ परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूसली. तो परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूसली. हर परसिस्टेंट वर्क हैज़ अर्न सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्क. देखो, उसके लगातार जो काम है उसके कारण उसको बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको अवार्ड मिला है. शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया फॉर सेल्फलेस वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट. शी हैज़ बीन ऑनर्ड, उसको सम्मानित किया गया है. प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही प्रसिद्ध. नेशनल अवार्ड्स, भारत के बहुत से नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड उसको दिया गया है. फॉर सेल्फलेस मतलब जिस सेल्फिश के जस्ट अपोजिट, स्वार्थी नहीं, जो जिसमें स्वार्थ ना हो, तो वो सेल्फलेस वर्क रहता है, जिसके बिना स्वार्थ के निस्वार्थ कर सकते हो. तो इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट थे, तो इन्वायरमेंट के फील्ड में उन्होंने निस्वार्थ भावना से बहुत से काम मतलब बहुत से पेड़ लगाए. 284 पेड़ लगाए थे, जिसके कारण उसको हमारी गवर्नमेंट ने, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने उनको ऑनर किया है, सम्मानित किया है. शी आल्सो हैज़ अ US environmental organization called Thimakka Resources for Environmental Education named after her. और उसको US गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से उनको उनका जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसका नाम थिमक्का रिसोर्सेज फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन रखा गया है. सालू मरादा, ब्रीफ हिस्ट्री. सालू मरादा वॉज बोर्न इन अ विलेज नेम्ड हुलिकल दैट फॉल्स अंडर द मगाडी तालुक ऑफ बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट्स. तो ये मैं होलिकल गांव से वो बिलोंग करती है. उनका जन्म हुआ था कौन से डिस्ट्रिक्ट से? मगाडी डिस्ट्रिक्ट से. कहाँ पे है ये आपका बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट है. रूरल मतलब ग्रामीण जो जिला है, वहाँ पे से ये बिलोंग करती है. वहाँ पे उनका इसका जन्म हुआ था. शी वॉज नोन एज थिमक्का देन, तभी से इसका नाम थिमक्का जाना गया. शी डिड नॉट गो टू
शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल भी नहीं गई थी, नॉट गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन, ना किसी प्रकार की उसने फॉर्मल एजुकेशन किया था। फॉर्मल मतलब ना नाम जा कर के स्कूल में लिखाए थे, इसकी फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं लिया गया था, ठीक है, कि इसका नाम स्कूल में लिखा हुआ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रॉम एन अर्ली एज शी वर्कड एज अ लेबरर इन अ क्वारी नियर हर होम, और शुरू से ही अर्ली एज से ही उसने क्वारी में काम किया था। क्वारी मतलब जो गड्ढा रहता है जिसमें जैसे आपका गिट्टी निकालते हैं, तो गिट्टी निकालते हैं तो उस समय बहुत सारे गड्ढा देखे हो गया, बहुत बड़ा गड्ढा देखे होगे, है ना, या कोई पत्थर निकालते हुए हैं तो आपके आसपास एरिया में आप लोग देखे होगे, तो उसमें लेबर लोग काम करते हैं ना, मजदूर लोग, तो उसमें भी ये काम करती थी। शी वॉज मैरिड अप टू चिकैया अ कैटल हर्डर, तो देखो यहाँ पे चिकैया की स्पेलिंग देखो, और हर्डर की स्पेलिंग हर्डर, है ना, तो सी उसको उसकी शादी किससे कर दी थी, चिकैया से, चिकैया जो कि कौन था, कैटल हर्डर था। कैटल मतलब जानवर, जिसको मवेशी आप लोग बोलते हैं, हर्डर मतलब चरवाहा, है ना, कैटल हर्डर, तो कैटल हर्डर मतलब चरवाहा से उसकी शादी कर दी गई थी। द कपल वांटेड चिल्ड्रन बट वर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ, और कपल क्या चाहते थे, कपल मतलब दोनों साथ हस्बैंड वाइफ, वांटेड चिल्ड्रन उन लोग दोनों बच्चे चाहते थे, बट वर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ, शादी के 25 साल बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था, उनको बच्चा चाहते थे उन लोग, है ना। वन डे द हस्बैंड वाइफ डियो डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग ऑफ देयर लाइफ। एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ, डियो मतलब दोनों ने डिसाइड किया कि प्लांट लगाया जाए, ट्रीज लगाया जाए, है ना, कहाँ, किस लिए, टू ओवरकम द सैडनेस, अपने जो उसको सैडनेस है, दुखी रहते थे, उसको उस पर विजेता पाने के लिए, उस पर मतलब उस ओवरकम पाने के लिए, और ताकि उसका एम्प्टी फीलिंग हो, जो उनका खालीपन है उनकी ज़िंदगी में, उससे वो उस पर वो लोग उस पर विजेता पाने के लिए इन्होंने प्लांट लगाने के बारे में सोचा। देखो नया आइडिया आ गया उनके दिमाग में। दैट वाज अराउंड 50 ईयर्स अगो, लगभग ये 50 साल पहले की बात है। फ्रॉम देयर स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डनरी कपल टुवर्ड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिशन, ठीक है। अब वहाँ से उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया, अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डनरी कपल। देखो ऑर्डनरी कपल थे, उन लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं थे, कोई बहुत होशियार नहीं थे, है नहीं, हाँ, आपके जैसे जो गांव में सब कोई रहते हैं उनके जैसे थे, हम हमारे जैसे थे, है ना। टुवर्ड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिशन, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिशन को इन्होंने पकड़ा था। एक ऑर्डनरी कपल ने सोचा क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था यहाँ पे, सोचे उनको मिशन, वही पेड़ लगाना, है ना, अ मिशन टू रेज एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल। उन लोगों का क्या मिशन था कि जितना अधिक से अधिक ट्रीज लगाया जाए, है ना, और उसका केयर किया जाए, एंड एज देयर ओन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों जैसे। हर जर्नी टू बिकम सलूमरादा थिमक्का। अब वो सलूमरादा थिमक्का कैसे बनी, उसका जर्नी कैसे यात्रा शुरू होता है, देखिए। थिमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट trees along the roadside and they selected the road to the next village। तो मक्का और उसके हस्बैंड दोनों डिसाइड करते हैं कि रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाया जाए, और उसके लिए उन लोग कुदूर नामक गांव को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस पर्टिकुलर रोड वाज वन दैट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री। क्यों उन लोग कुदूर नामक गांव को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल ट्री भी नहीं था, एक पेड़ भी नहीं था। एंड कॉज्ड इमेंस हार्डशिप टू ट्रेवलर्स की यहाँ पे स्पेलिंग देखिए आप लोग, TRAVE भी करेक्ट होता है और सिंगल एल भी करेक्ट होता है, दोनों करेक्ट स्पेलिंग है। यहाँ पे सिंगल एल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये भी करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये कुदूर गांव के उन लोग क्यों सेलेक्ट किए थे, क्योंकि यहाँ पे चलने पे यात्रियों को बहुत कठिनाइयाँ महसूस होती थी। एक पेड़ भी नहीं था, छाँव भी नहीं था, है ना। तो ज़रा आप सोच सकते हो, जिस रोड में एक छाँव ना हो, बिल्कुल छाँव ना हो, तो वहाँ पे कितनी धूप का सामना करना पड़ता है। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग्स फ्रॉम फाइकस बेनियान ट्रीज एज देयर वर प्लेंटी ऑफ फाइकस ट्रीज नियर हर। अब उन लोग ग्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। ग्राफ्टिंग जानते हो ना आप लोग, कैसे तना को काट करके उस पर दूसरे तना को जोड़ते हैं, तो ग्राफ्टिंग होते हैं। आप लोग जैसे गुलाब का पेड़ भी गुलाब का आप लोग प्लांट लगाए होंगे, ग्राफ्टिंग करके लगाते हैं। तो क्या होता है, छोटा सा गुलाब रहता है, उसको बड़ा गुलाब में लगाते हैं, तो उस समय भी आप ग्राफ्टिंग करते हैं। तो वैसे ही इन लोग बेनियान ट्री पे
ग्राफ्टिंग किए थे और मतलब अपने लगाए थे इन लोग। उसके बाद दे ग्राफ्टेड 10 सैपलिंग्स इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में 10 सैपलिंग्स लगाए। सैपलिंग मतलब छोटा पेड़ है ना, प्लांट जिसको आप लोग बोलते हो। एंड प्लांटेड देम अलॉन्ग अ स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर ऑन द रोड दैट लेड टू कुदूर। देखो 4 किलोमीटर को लोग कवर किए थे उन लोग। दे डिसाइडेड द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद उसको उन लोग 15 कवर कर लिए उन लोग। ठीक है, पहले तो 4, उसके बाद 15 किलोमीटर। उसके बाद दे कंटिन्यूड देयर एफर्ट्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स विद ईच पासिंग ईयर। उन लोग अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयास को कंटिन्यू रखे, लगातार रखे, और सैपलिंग्स हर साल बढ़ाते गए, मतलब छोटे प्लांट्स हर साल लगाते गए। दे डिड नॉट प्लांटेड द सैपलिंग्स बट आल्सो टेंडेड टू द यंग सैपलिंग। उन लोग न केवल प्लांट्स लगाए, छोटे पेड़ लगाए, बल्कि उनका केयर भी किए। टेंडेड मतलब केयर करना। ईच मॉर्निंग दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम विथ 4 पॉट्स फिल्ड विथ वाटर। और हर सुबह उन लोग अपने घर से अपनी जर्नी शुरू करते थे और पॉट लेकर के चलते थे। पॉट मतलब मटका, पानी लेकर चलते थे। एंड वाटर द सैपलिंग, वाटर्ड, और पानी और सैपलिंग्स को, छोटे पौधों को पानी दिया करते थे। वाटर, वाटर मतलब पानी, वाटर मतलब पानी देना। ठीक है, ये वर्ब के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ देखिए वर्ब के रूप में वाटर है, वाटर्ड यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे वाटर जो है नाउन के रूप में है, यहाँ वाटर्ड वर्ब के रूप में है। व्हेन द पॉट्स emptied out, they refilled them from the nearby ponds and wells and continue watering the saplings while covering the whole stretch on feet and return home doing the same thing. और जब उन लोग पॉट्स को मतलब मटका को खाली कर देते थे, एम्प्टी आउट मतलब खाली कर देते थे, फिर से रिफिल कर देते थे। रिफिल मतलब फिर से भर कर देते। तो कहाँ से भरते थे पानी को? उन लोग जो है पॉन्ड्स मतलब तालाब, और वेल्स मतलब कुआं से और तालाबों से भर देते थे, और फिर से सैपलिंग्स को, छोटे पौधों को पानी दिया करते थे। ठीक है, और उसके बाद दे ट्रीटेड द सैपलिंग एज देयर ओन चिल्ड्रन। और उन लोग सैपलिंग्स को अपने खुद के बच्चों की तरह उन लोग मानते थे। एंड ईच डे फॉलोड द सेम रूटीन, वही सेम रूटीन रहता था हम लोग के लिए। दे आल्सो प्रोटेक्टेड द सैपलिंग फ्रॉम द ग्रेजिंग कैटल बाई फेंसिंग देम विद थॉर्नी श्रब्स। हम लोग सैपलिंग्स को कैसे प्रोटेक्ट करते थे, रक्षा करते थे, जैसे फ्रॉम ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब जो घास खाते थे ना, कैटल लोग, मवेशी लोग घास खा जाते हैं किसी भी चीज़ को, खासकर पेड़ों को, तो उसको फेंसिंग करके, फेंसिंग लगा करके, तो किस चीज़ से फेंसिंग लगाते थे? थॉर्नी श्रब्स। जैसे आप लोग यहाँ पे बबूल का पेड़ काट करके लगा देते हैं, वैसे ही उन लोग भी कोई भी थॉर्नी चीज़ मिलता था कांटेदार वाला, तो उसके चारों तरफ उन लोग घेरा लगा देते थे। ठीक है, देयर टायरलेस एफर्ट्स बिगेन टू बेयर फ्रूट। इसको एक्चुअली बेयर, देखो इसको बेयर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, BEAR, बेयर। एक बेयर मीन्स क्या होता है? भालू। ये बेयर मीन्स क्या होता है? तो एक बेयर मीन्स, दूसरा बेयर मीन्स सहना, यहाँ पे देना, फ्रूट्स देते है ना। तो उन लोग को जो टायरलेस एफर्ट्स मतलब बिना थके हुए एफर्ट्स किए थे, तो उससे फ्रूट्स देना शुरू हुआ, मतलब फल देना शुरू हुआ। When the saplings grew into large, जब वो सैपलिंग, छोटे छोटे पेड़ जब बड़े बन गए और स्ट्रॉन्ग ट्री बन गए, तो उन लोग फल देना शुरू कर दिए। The couple planted the saplings mostly in the monsoon season so that the plants would get the rain water for their growth. और कपल्स लोग को क्या हुआ, उन लोग प्लांट कब करते थे? उन लोग ज़्यादातर मानसून सीजन में। देखो मानसून सीजन कब होता है? मानसून जान गए ना तुम लोग? जब बरसात का सीजन आता है तो जून जुलाई में, जून से वैसे 15 जून से शुरू हो जाता है, तो हो गया। सो दैट द प्लांट्स वुड गेट वाटर फ्रॉम देयर ग्रोथ। द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज इन टोटल। तो 300 पेड़ लगा चुके थे उन लोग। एंड टुडे द एसेट वैल्यू ऑफ ट्रीज स्टैंड्स एट मोर 1.5 मिलियन रुपीज़। आज उसका कुल वैल्यू 1.5 मिलियन। 1 मिलियन में कितने रुपये होता है? 1 मिलियन इक्वल तो कितना बता सकते हो कोई? 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, है ना। तो 1.5 में आप 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, तो समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई गुणा करके देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा, है ना। थिमक्का हस्बैंड पास्ड अवे इन 1991। उसके हस्बैंड जो है, उसके पति 1991 में ख़त्म हो गया, उसको छोड़ के चला गया। बट शी कंटिन्यूड विथ हर मिशन अलोन एंड अनडॉन्टेड। लेकिन अपने मिशन में वो अकेली रही और कंटिन्यू रही, लगातार करते रहे बिना थके हुए। अनडॉन्टेड मतलब बिना थके, विदाउट टायर्ड। द
गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज नाउ। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है और मैंने अपना खुद मैनेज कर रहा है उसको। थिमक्का वॉज रिफर्ड एज सालुमरादा थिमक्का आफ्टर हर वर्क गॉट पॉपुलर एमंग द पीपल। सालुमरादा मीन्स अ रो ऑफ ट्रीज इन कन्नड़ा लैंग्वेज। सालुमरादा मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है रो ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों के पंक्तियाँ। कन्नाडा एक्चुअली इस कन्नाडा वर्ड से ना, कन्नड़ा, कन्नड़ा कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कन्नड़ा। तो कन्नड़ा में ही सालुमरादा का मतलब होता है अ रो ऑफ ट्रीज। शी वॉज गिवन द नेम टू ऑनर। देखो यहाँ पे ऑनर की स्पेलिंग HONOR, ये अमेरिकन इंग्लिश है। एक्चुअली करेक्ट स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश क्या है, HONOUR। हर डेडिकेशन टूवर्ड्स प्लांटिंग द सैपलिंग्स and preserving the environment despite the numerous hardship that she and her husband had to face along the way। तो है ना, तो उसको she was given the name to honor, उसका नाम दिया गया, उसको सम्मानित किया। her dedication towards planting the saplings। तो देखो कितना डेडिकेशन था, तो उसके लिए कैसे उसको सम्मानित किया जा रहा है, देखिए उसको। एंड प्रिजर्विंग मतलब रक्षा करने के लिए, क्या चीज़ का रक्षा करने के लिए, एनवायरनमेंट पर्यावरण का। डिस्पाइट द न्यूमरस हार्डशिप, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, न्यूमरस बहुत से हार्डशिप आते थे, कठिनाइयाँ आई, उसके बावजूद उसने रक्षा की। उसके डेडिकेशन को देखा गया, गवर्नमेंट के द्वारा समर्पण को देखा गया। दैट शी एंड हर हस्बैंड हैड टू फेस अलोंग द वे अदर सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ थिमक्का। कौन से सोशल एक्टिविटीज़ उसने किया था उसे। सालुमरादा थिमक्का डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज, केवल उसने प्लांटिंग ही नहीं किया, पेड़ ही नहीं लगाए उसने। शी गॉट इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैंक टू स्टोर रेन वाटर फॉर द एनुअल फेयर ऑफ हर विलेज। उसने अपने आप को इन्वॉल्व रखा इसमें, इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज़, बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैंक, टैंक का कंस्ट्रक्शन, क्या चीज़ के लिए टैंक का कंस्ट्रक्शन, टू स्टोर रेन वाटर फॉर द एनुअल फेयर ऑफ हर विलेज। जो है रेन वाटर को स्टोर करके रखते थे, मतलब पानी, जो बरसात के पानी को स्टोर करके रखते थे। इसलिए एनुअल फेयर, वहाँ पे साल में एक बार मेला लगता था उनके गांव में, इसलिए उसको इकट्ठा करके रखते थे। उसने शी हैज़ प्लान्स ऑफ बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इन हर विलेज, और उसने हॉस्पिटल भी बनाया। एंड हैज़ सेटअप अ ट्रस्ट फॉर द पर्पज, उसके लिए एक ट्रस्ट सेटअप किया। अकेले नहीं बना सकती थी ना, उसमें और भी आदमियों को ट्रस्ट क्यों बनाया जाता है, ताकि उसमें अन्य आदमियों, उनका भी सहयोग लिया जाए, है ना। शी इज़ इन एन एक्टिव क्रूसेडर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफॉरेस्टेशन। तो वो एक्टिव क्रूसेडर थी, ठीक है, किस लिए, फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब देखो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए उसने, है ना। और एफॉरेस्टेशन के ठीक उल्टा अगर अपोजिट बोलें तो डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। हर सिंपल फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज दैट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ मस्ट लीव बिहाइंड सम एसेट फॉर ह्यूमनिटी। उसकी सिंपल फिलॉसफी है उसकी लाइफ की, उसकी ज़िंदगी की, क्या कि हर व्यक्ति को इस पृथ्वी में हर व्यक्ति को अपना एक छोटा सा एसेट धन छोड़ के जाना चाहिए। क्या चीज़ के लिए, ह्यूमनिटी के लिए, मानवता के लिए, मतलब ऐसा कुछ काम करना है जिससे लोग याद करें, है ना। शी स्टिल लिव्स इन इकोनॉमिक क्राइसिस। वो अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस, उसका कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है अभी भी, उसका इकोनॉमिक क्राइसिस है अभी भी उसके बाद, है ना। जस्ट मैनेजेस टू समहाउ मेक अ लिविंग फ्रॉम द वेरियस अवार्ड्स। अभी उसको बहुत से अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो एनी हाउ किसी तरह मैनेज कर लेती है वो। एंड अ मंथली पेंशन, उसको पेंशन ही मिलता है ना, उसको मंथली मासिक में पेंशन मिलता है। बट दिस हैज़ नेवर मैनेज टू किल हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। लेकिन इसने कभी उसका बट दिस हैज़ नेवर मैनेज टू किल हर स्पिरिट। तो छोटा सा पेंशन, अगर थोड़ी सी पेंशन मिलता है उसको, तो उससे उसके स्पिरिट उसकी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी एनर्जी उसकी ख़त्म नहीं हुई है। अब उसका पैशन है, जो काम करने के प्रति लगा हुआ है, वो मानवता के प्रति, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर थिमक्का। सालुमरादा थिमक्का इज़ द आइडल ऑफ एवरी एनवायरमेंटलिस्ट। और वो हर पर्यावरण, जितने भी पर्यावरण है, उसके वो आइडल है, उसके वो मॉडल के रूप में है वो। शी हैज़ शोन द वर्ल्ड हाउ वन इलिटरेट वुमेन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ द सोसाइटी थ्रू हर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। उसने दिखा दिया है
कि कैसे एक अशिक्षित औरत कितना बड़ा काम कर सकती है। ह्यूज डिफरेंस ऑफ द सोसाइटी, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस सोसाइटी थ्रू हर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। अपने हार्ड वर्क से, अपने कठिन वर्क से, अपने धैर्य से कैसे एक इलिटरेट वुमेन, कैसे अशिक्षित वुमेन, कैसे दुनिया को उसने एक रास्ता दिखाया है कि कितना बड़ा काम किया कर सकते हैं। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ वन मित्रा निसार गरत्ना and Briksh Premi and Briksh Shri for her uncompromising efforts towards saving the environment. She has been conferred मतलब सम्मानित किया गया है with several awards and citation including National Citizens Award in 1995. देखो उसको कितने सारे awards मिले हुए हैं ना. And okay, after that honor certificate फ्रॉम द वीमेन एंड चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट, उसको बहुत सारे अवार्ड मिले. गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने और ये भी अवार्ड दिए हैं उसको. विशाल लक्ष्मी अवार्ड भी दिया गया है बाय आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. एंड सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी दिया गया है फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर की तरफ से, है ना. तो ये जो फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 12, 2015 बाई माधुरी. ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पब्लिश किया गया था. ठीक है. तो ये आपके देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें जो इसके मीनिंग्स इसमें दिए गए हैं. परसिस्टेंट मतलब लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्वारी ये मतलब जो गड्ढा रहता है ना इसमें, ये दे लार्ज आर्टिफिशियल होल. ठीक है. सैपलिंग दिया गया, सैपलिंग में से यंग ट्रे इस टाइप से दिया गया है. अब इसको आप लोग अच्छे से घर में पढ़िएगा. ठीक है. ओके. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे. ओके. थैंक यू वेरी मच.